دور تھا کہ نوکیا نے اتنے زیادہ فون بیچے کہ ایپل اور سیمسنگ کی سیلز کو اگر کمبائن بھی کر دیا جاتا تو نوکیا کے قریب ہی نہیں پہنچتے تھے. بٹ آج نوکیا جو ہے وہ 9 ہونے کے برابر ہے. سو اس اسمارٹ فون جائنٹ کو اتنی بڑی کمپنی کو آخر ہوا کیا اور ہم اس کے رائز اینڈ فال سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آج کی کیس اسٹڈی میں ہم ڈسکس کریں گے دا رائز اینڈ فال آف نوکیا. آج کی کیس اسٹڈی ہم ڈسکس کریں گے دا رائز اینڈ فال آف نوکیا, ایک ایسا برانڈ جس نے موبائل فون کی دنیا کو فتح کیا اور اس کے بعد اس کا زوال آیا. نوکیا جو کمپنی ہے یہ 1865 یعنی کہ 1865 میں آئی تھی اور یہ فن لینڈ کی ایک کمپنی ہے. 19ویں صدی میں ظاہر اسمارٹ فونز تو تھے نہیں, تو اس نے ایز اے اسمارٹ فون کمپنی کبھی بھی شروع نہیں کیا. اس نے ویریس سیکٹرز ویریس انڈسٹریز میں کام کر کے اپنے ایوالو کیا. اس نے ایز اے ربر کمپنی بھی کام کی ہے, اس نے ایز اے کیبل کمپنی بھی کام کی, اور اس نے ایز اے الیکٹرانکس کمپنی بھی کام کیا ہے بفور ایکچولی بیکمنگ اے اسمارٹ فون کمپنی اینڈ اے اسمارٹ فون جائنٹ. 1980 اور 1990 کے بیچ میں نوکیا بیکیم اے پائنیئر ان دا ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری اینڈ ان دا ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر. اور 1998 کے اندر نوکیا جو ہے دنیا کے سب سے بڑی موبائل فون مینوفیکچرر بن چکا تھا. نوکیا کی شروعات فن لینڈ میں ایز اے پیپر مل کمپنی ہوئی تھی اور تقریباً 125 سال کے بعد یہ موبائل فون کی لیڈر بن گئے تھے. نوکیا کی جو پیک اور پرائم 3 آف رولنگ دا موبائل فون انڈسٹری وہ تھا 2000s اینڈ ارلی 2000s. 2000s میں کیا ہوا تھا کہ نوکیا جو ہے اٹ بیکیم دا موبائل فون کنگ. 2005 کے اندر نوکیا نے 265 ملین یعنی کہ 265 ملین فونز بیچے, اور یہ وہ نمبر تھا, ایک سٹیگرنگ نمبر تھا کہ باقی سارے برانڈز مل بھی جائیں تو اس کے قریب بھی نہیں پہنچتے تھے. اور 2007 تک جو کہ نوکیا کا پیک ٹائم تھا, اس وقت تک نوکیا کے پاس 51% آف دا گلوبل مارکیٹ شیئر تھا, یعنی کہ دنیا کی مارکیٹ کا جو موبائل فون سیگمنٹ تھا اس کو 51% نوکیا ڈومینیٹ کرتا تھا, یعنی کہ ہر دوسرے بندے کے پاس دنیا میں ایک نوکیا کا فون تھا. تو نوکیا نے ایک طرح کی مونوپلی کریٹ کر لی تھی, اس کے پاس 51% شیئر تھا. آج کل کے دور میں جو ہماری برانڈز ہیں جیسا ایپل اور سیمسنگ ہے, ان کے پاس 20 سے 25% ایچ شیئر ہے. سو آپ امیجن کریں کہ نوکیا کیا جائنٹ تھا اپنے دور کا. نوکیا جو ہے یہ اپنے لیجنڈری فونز کی وجہ سے مشہور ہے, جیسے کہ 3310 جس کو ہم 3310 بھی کہتے ہیں, جو کہ موبائل فون کا کنگ ہے. نوکیا کے فونز کی کیا خاص بات تھی؟ ان کی بیٹری لائف اچھی تھی, ان کی ڈیوریبلٹی بہت رگڈ, ان کو آپ پھینکو تب بھی ٹوٹتے نہیں تھے وہ. اور تیسری چیز, اس وقت ان کا جو انٹرفیس تھا وہ کافی سمپل تھا اور انٹیوٹیو تھا, اس کو لوگ بڑے آرام سے یوز کر لیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر دوسرے بندے کے پاس نوکیا تھا. 3310 جس کا میں نے بھی ذکر کیا, 3310 یہ نوکیا کا ایک ہٹ تھا, اور اتنا یہ بکا کہ انہوں نے 2017 میں دوبارہ اس کو ری لانچ کیا تاکہ وہ جو نوسٹیلجیا ہے, جو پرانے ان کے یوزرز تھے, وہ دوبارہ اس کو خریدیں, اور یہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے. ایک اور آپ کو میں فیکٹ بتاؤں کہ نوکیا کا فون 1100 یہ دنیا کا سب سے زیادہ بکے جانے والا فون ہے. 2003 میں اس نے 250 ملین یونٹ سیل کیے ہیں اس فون کے, یعنی کہ 250 ملین لوگوں نے نوکیا کا 1100 فون خریدا 2003 کے اندر. آپ امیجن کریں کہ اس دور میں یہ فون اتنا بکا. 250 ملین کا مطلب ہے 25 کروڑ لوگوں نے نوکیا کا 1100 فون یوز کیا, 25 کروڑ اس کے یونٹس بکے. سو اس کو خالی سوچیں آپ. اس کے علاوہ کچھ اور نوکیا کے اکونک فونز کا ہم ذکر کرتے ہیں جنہوں نے نوکیا کو ایز اے برانڈ بنایا ان دا 2000s, جس میں 6600 کا ہم ذکر کریں گے جو کہ 2003 میں لانچ ہوا تھا, اور یہ فون میں نے اس دور میں خود پرسنلی بھی یوز کیا تھا. It was one of the most iconic and one of the most beautifully designed phones of its time. یہ بلیک اینڈ وائٹ 2 ٹون کی کنٹراسٹ کے اندر تھا, بہت ہی خوبصورت فون تھا, اور اس کا ایڈ بھی مجھے یاد ہے اس دور میں انہوں نے ایڈ بنایا تھا, وہ گاڑی کی تصویریں لیتے تھے اس فون سے. اس کے علاوہ نوکیا کا 7610 ایک ماڈل تھا, بہت ہی اچھا نامور ماڈل جو کہ 2004 میں لانچ ہوا. اور اس کے علاوہ نوکیا نے ایک اور بڑی انوویشن کی تھی اس دور میں, انہوں نے گیمنگ موبائل فونز نکالے انگیج سیریز کے. سو ان موبائل فونز کے اندر آپ گیمنگ بھی کر سکتے تھے اور اس کے ساتھ ان کو ایز اے فون بھی آپ یوز کر سکتے تھے. سو اس دور تک نوکیا کافی آ گیا تھا. اٹ واز وے اہیڈ آف دا کمپٹیشن. نوکیا کے کچھ کی اسٹرینتھس تھے جن کا میں ذکر کرنا چاہیں گے. اس کی کامیابی کا جو راز تھا, ایک تو اس کے پاس ہائی برانڈ ٹرسٹ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں پاکستان میں اگر ہم 20 سال پہلے جائیں نوکیا کے ایرا کے اندر, تو ہر کمپنی, ہر آؤٹ لیٹ نوکیا بیچا تھا. نوکیا کی اس ٹائم وارنٹی ملتی تھی اور وارنٹی فوراً کلیم ہو جاتی تھی, اور نوکیا کا ایک ٹرسٹ تھا. کسٹمر جاتا تھا صرف نوکیا خریدنا مارکیٹ کے اندر. دوسری جو ان کی اسٹرینتھ تھی وہ یہ تھی کہ یہ اس دور میں ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ میں لیڈ کر رہے تھے, یعنی کہ ان کا جو ہارڈ ویئر تھا وہ بہت سپیریئر تھا. ان کے بٹنز, ان کا ٹچ پیڈ, ان کے موبائل کی ڈیوریبلٹی, یہ سب کچھ ان کا اسٹرینتھ تھی اس ٹائم کی. اور اس کے بعد جو ان کی کور اسٹرینتھ تھی وہ تھی کہ ان کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اور چینل ان میچ تھا.
चाहे आप यूरोप में चले जाएं, चाहे आप एशिया में चला जाएं, चाहे आप किसी भी इमर्जिंग मार्केट में जाएं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही बड़ा और बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत फैला हुआ था। पाकिस्तान में भी उस वक्त मुझे याद है कि हर दुकान के बाहर बोर्ड पे नोकिया की ब्रांडिंग होती थी। आजकल तो कई और ब्रांड्स आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम ऑल द मार्केट्स, मोबाइल फोन मार्केट्स वर ब्रांडेड विद द नोकिया लोगो, और नोकिया का नाम हर जगह चलता था। और उस वक्त में आज से 20 साल पहले दुकानों के अंदर पोस्टर्स होते थे, नोकिया के मोबाइल के पोस्टर्स होते थे। सो नोकिया ने उस दौर में इतनी ब्रांडिंग की, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना बड़ा था, उसकी इतनी ब्रांड पावर थी उस दौर में कि इसका नाम बिकता था। सो नोकिया क्या था कि इट वाज अ हार्डवेयर कंपनी फर्स्ट और सेकेंडरी ये सॉफ्टवेयर कंपनी थी। यानी कि इन्होंने हार्डवेयर को तरजीह दी। इन्होंने कहा कि हमारी हार्डवेयर स्ट्रेंथ है तो हम हार्डवेयर को फोकस करें। लेकिन यहाँ पर एक और इशू आया जो कि इनके डाउनफॉल जहाँ से शुरू हुआ, वो ये था कि दुनिया इस वक्त के अंदर 2007 के अंदर हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांजिशन करी थी। यानी कि कंपनीज दुनिया भर में हार्डवेयर ओरिएंटेड कंपनीज जो थी वो सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांजिशन करी थी एंड दे वर बिकमिंग सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड। अब हुआ क्या, नोकिया का डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ? इतनी बड़ी कंपनी जिसका 51% मार्केट शेयर था, इतनी उसकी मोनोपोली थी, इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, इतना बड़ी ब्रांड वैल्यू थी, ब्रांड पावर थी। क्या हुआ, 2007 में गेम चेंज हो गई थी। 2007 में जब एप्पल ने अपना आईफोन निकाला, सो उसने दुनिया की मोबाइल फोन मार्केट को चेंज कर दिया और उसने मोबाइल फोन को स्मार्टफोन में कन्वर्ट कर दिया। जब आईफोन आया था तो एप्पल ने 3 चीजें क्लेम की थी, हम लॉन्च कर रहे हैं एट द सेम टाइम, जो कि सरप्राइज था एक्चुअली आईफोन का। हम एक मोबाइल फोन लॉन्च कर रहे हैं, हम एक बड़ा आईपॉड लॉन्च कर रहे हैं और हम एक इंटरनेट कम्युनिकेशन डिवाइस लॉन्च कर रहे हैं। ये तीनों एंड में एक ही चीज थी जिसको उन्होंने कहा आईफोन। सो जब आईफोन आया तो उसने क्या कि उसने मोबाइल फोन को एक मिनी कंप्यूटर बना दिया। आपकी जेब में हर वक्त एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आप उससे कोई भी कमांड दें, आप उससे जो कुछ अपने कंप्यूटर पे कर सकते थे आप फोन पे भी कर सकते थे। ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता चीजें इवॉल्व हुई, एवोल्यूशन हुई, लेकिन दैट वाज द स्टार्टिंग। फिर क्या हुआ कि 2008 में, 1 साल बाद, गूगल ने एंड्रॉइड लॉन्च कर दिया। ये एक ओपन सोर्स और अडेप्टेबल मोबाइल प्लेटफॉर्म था जिसको बड़ी बड़ी कंपनीज ने, टेक जायंट्स जैसे कि सैमसंग, HTC, LG और मोटोरोला, उस वक्त के टॉप ब्रांड्स थे फोन्स के, उन्होंने इसको बैक किया और उन्होंने एंड्रॉइड को अडेप्ट किया। लेकिन नोकिया ने इस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली एंड्रॉइड को अडेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि हमारा जो अपना मोबाइल OS है, सिम्बियन OS, हम उसी को आगे लेके चलेंगे। ठीक 2 साल बाद 2010 में एंड्रॉइड सरपास्ड iOS एंड आईफोन एज द लीडर इन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और इसका ग्लोबल शेयर सबसे ज्यादा हो गया था। और अभी तक नोकिया ने एंड्रॉइड को नहीं अडेप्ट किया। ये नोकिया की सबसे बड़ी और पहली गलती थी कि वो हार्डवेयर के अंदर स्टिक किया, उन्होंने सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं मूव किया। दुनिया कहीं और जा रही है लेकिन उनको अभी भी समझ नहीं आ रही। यही वजह है जहां से इनका डाउनफॉल और डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। iOS और एंड्रॉइड जो है वो लोगों को सीमलेस UX यूजर एक्सपीरियंस देते थे। उसके अलावा उनको जो ऐप इकोसिस्टम था वो लोगों को हर चीज देते थे। देयर इज एन ऐप फॉर एवरीथिंग। जो यूजर को ऐप चाहिए वो डाउनलोड करके उसको यूज करते थे। लेकिन नोकिया का जो सिम्बियन OS था, इनके सामने वो क्लंकी और आउटडेटेड लगता था। 2009 में नोकिया ने कोशिश की N97 मोबाइल निकालने की और उन्होंने कहा था कि जो N97 है, इट विल डायरेक्टली compete with the iPhone and Android devices, but it failed। और फेलियर की वजह अगेन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर 2011 में नोकिया ने एक बड़ी अजीब सी डिसीजन ली। उन्होंने डिसीजन ली कि हम लोग विंडोज को अडेप्ट करेंगे अपने मोबाइल के अंदर, हम विंडोज फोन्स बनाएंगे। अब इस मूव की भी मैं समझ नहीं है कि विंडोज फोन आउट ऑफ नोवेयर नोकिया ने क्यों अडेप्ट किया जबकि दुनिया एंड्रॉइड पे चल रही और iOS पे चल रही थी। फिर नोकिया ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट से डील की कि आप हमारे मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं और हमारे सारे फोन्स जो हैं वो विंडोज फोन के OS पे रन होंगे। सो इस हरकत ने नोकिया के यूजर्स को और डेवलपर्स को, लोगों को कंफ्यूज किया कि यार नोकिया किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। इस हरकत के बाद उनके यूजर्स मजीद गिरना शुरू हो गए। बजाय कि यूजर्स उनके प्लेटफॉर्म पे और उस कंपनी को और ज़्यादा सपोर्ट करते और ज़्यादा उनके फ़ोन्स खरीदते, वो इनसे दूर भागना शुरू हो गए कि दुनिया कहीं जा रही है और ये कंपनी कहीं और जा रही है। हालांकि इनकी जो लूमिया सीरीज़ थी, जो कि मैंने पर्सनली खुद भी यूज़ की थी उस दौर में, इसका जो हार्डवेयर था बड़ा अच्छा था, लेकिन ये सॉफ्टवेयर से मार खाते थे, जिसकी वजह से मैंने भी लूमिया फ़ोन बहुत जल्द बेच दिया था। अब इससे क्या हुआ कि नोकिया ने मार्केट शेयर तो लूज़ किया ही किया, लेकिन इसकी जो वजूहत हुई थी कि नोकिया को इतनी बड़ी कंपनी थी तो इसके अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट थी। बहुत बड़ा एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस था, मैनेजर्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते थे। सो बड़ी कंपनीज के ये नुकसान भी होते हैं कि उनको जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होता है वो बहुत टीडियस और बहुत ही लंबा होता है। और फिर फाइनली जब नोकिया ने एंड्रॉइड की पावर को रियलाइज किया
it was already too late. 2010 से 2013 के बीच में जो नोकिया का स्मार्टफोन मोबाइल फोन शेयर है वो 38% से यानी कि 38% से गिर कर 3% या 3% पे आ गया सिर्फ। फिर 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ी ही बोल्ड मूव की। उन्होंने कहा कि हम नोकिया का मोबाइल फोन डिवीजन खरीद लेते हैं और उन्होंने 2013 में नोकिया का मोबाइल फोन डिवीजन $7.2 बिलियन पे खरीद लिया। उन्होंने कहा हमारा एक नाम है, हम एक बड़ी कंपनी है, हमारे पास विंडोज ओएस भी है, हमारे पास एक एक्सपीरियंस टीम भी है, तो हम नोकिया के मोबाइल फोन सेगमेंट को उठा लेते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि यूजर्स ऑलरेडी जो हैं वो एंड्रॉयड और आईओएस की तरफ चले गए थे और नोकिया का जो शेयर है वो बहुत कम हो गया था। 2014 में जो फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर है अलेक्जेंडर स्टब, जो कि इस वक्त फिनलैंड का सदर भी है, उसने कहा था कि आईफोन और आईपैड ने फिनलैंड की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया। नोकिया जो कि फिनलैंड की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, इट वाज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। आईफोन और आईपैड ने हमारे मोबाइल को और हमारी रीडिंग इंडस्ट्री को, न्यूज़पेपर बुक्स रीडिंग इंडस्ट्री को बहुत डैमेज, क्योंकि लोग अब सब कुछ स्क्रीन्स के ऊपर करना शुरू हो गए, रीडिंग स्क्रीन्स के ऊपर आना शुरू हो गई थी, ऑडियो बुक स्टार्ट हो गई थी। सो ये जो फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर जो करंटली सदर है, उसने 2014 में ये बात की थी। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में जस्ट विद इन 3 इयर्स उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमसे जो है नोकिया का मोबाइल फोन डिवीजन नहीं चलने लगा, उनको लॉस हो रहा था और यूज़र्स उनके पास वापस नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने डील को राइट ऑफ कर दिया और उन्होंने नोकिया को HMD ग्लोबल को बेच दिया और इस किस्से के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने भी स्मार्टफोन मार्केट से अपने आप को दूर कर दिया। अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर HMD ग्लोबल ने नोकिया को रिवाइव करने की कोशिश की है, रिवैम्प करने की कोशिश की है, नोकिया को एंड्रॉयड पे ले आए हैं वो, और नोकिया को उन्होंने रीलॉन्च भी किया है। लेकिन इट इज़ जस्ट अ लिटिल टू लेट नाउ, बिकॉज बाकी जो ब्रांड्स हैं, बाकी जो कंपनीज हैं, उन्होंने इस टाइम बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। और नोकिया इस टाइम जो है वो बजट फ्रेंडली फोन्स पे फोकस कर रहा है, बार फोन्स के ऊपर और एंड्रॉयड फोन्स के ऊपर। और उसके साथ नोकिया करंटली हम बात करें तो फोकस कर रहा है टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। तो स्मार्टफोन का, मोबाइल का बिजनेस भी साथ साथ चला रहे हैं, लेकिन उनका जो फोकस है, कोर फोकस है, वो इस टाइम टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर है। अब हमें वक्त ही बताएगा कि क्या नोकिया दोबारा अपने अरूज पे जा पाएगा मुस्तकबिल के अंदर। इन द फ्यूचर हम देखेंगे कि क्या नोकिया दोबारा लग्जरी हाई एंड स्मार्टफोन्स निकालेगा या खाली बजट फ्रेंडली फोन्स के अंदर ही रहेगा। अब हम नोकिया की इस केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले नेवर अंडर एस्टिमेट चेंज। देखिए, नोकिया जो है इट फेल टू रियलाइज कि दुनिया जो है वो चेंज हो रही है, लोग सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आप को एज अ हार्डवेयर कंपनी रखा और वो स्मार्टफोन रेस से बिल्कुल ही बाहर हो गए और उनको बिल्कुल नहीं पता था कि ऐप इकोसिस्टम क्या होता है और कस्टमर्स की डिमांड क्या है। इसके साथ ही नोकिया ने जो अपना क्राउन जो है वो लूज कर लिया। दूसरी जो गलती इनकी है वो है स्पीड मैटर्स। इस जदीद दौर के अंदर, इतने फास्ट दौर के अंदर, इस ग्लोबलाइज्ड दौर के अंदर जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, नोकिया वाज टू लेट टू रिस्पॉन्ड। और टेक्नोलॉजी के अंदर स्पीड इज एवरीथिंग। द मोर क्विकर यू अडैप्ट, द मोर क्विकर यू इनोवेट, आप तब ही मार्केट लीडर रह सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। सो स्लो डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी बड़ी बड़ी टेक जायंट्स को है गिरा सकती है। इसी जो नोकिया की गलती है कि उन्होंने इकोसिस्टम को नहीं समझा। इकोसिस्टम होता है जो एनवायरनमेंट, जो नए एनवायरनमेंट्स बन रहे होते हैं। मोबाइल का इकोसिस्टम बन गया, मोबाइल के नए एनवायरनमेंट्स बन गए थे जो iOS और एंड्रॉयड लीड कर रहे थे। उस इकोसिस्टम के अंदर लोगों को एप्लीकेशंस चाहिए थी, लोगों को प्रॉब्लम्स के मसले इन एन ऐप चाहिए थे, हर चीज़ के लिए उनको एक ऐप चाहिए थी। नोकिया फेल टू रियलाइज दिस। उनको इस इकोसिस्टम की वैल्यू नहीं पता चली थी कि लोग इकोसिस्टम पे इन्वेस्ट करें, लोग इकोसिस्टम की वजह से iOS या एंड्रॉयड ले रहे हैं, वो हार्डवेयर सेकेंडरी उनके लिए। सो उस दौर में नोकिया फेल टू रियलाइज दिस थिंग। और एक और जो हम चीज़ सीख सकते हैं वो ये कि अडैप्ट और बिकम इररेलेवेंट। देखें, पास्ट ग्लोरी जो है इट विल नेवर गारंटी फ्यूचर सक्सेस, इट नेवर डज। देखें, आपका माजी जितना मर्जी स्ट्रांग हो, जितना मर्जी ग्लोरियस हो, लेकिन फ्यूचर उन लोगों के लिए है जो कि इवॉल्व करते हैं और वक्त के साथ चलते हैं। और यही चीज हमें इस केस स्टडी ने सिखाई है। अब आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं अगली केस स्टडी किस इंडिविजुअल या किस कंपनी के ऊपर करूं। और अगर आपको ये केस स्टडी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।